اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو واٹس ایپ پر کوئی میسیج تھا۔ اپنے بال سمیٹتی اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا، نمبر زرلش کا تھا، اور جیسے ہی میسیج اوپن کیا سامنے حنان اور زرلش کی تصویر تھی جس میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے حنان پر ڈالی اور پھر اپنے موبائل کی اسکرین پر، ساتھ میں زرلش کا میسیج تھا، دیکھ رہی ہو کتنے قریب تھے ہم ایک دوسرے کے، یہ تب کی ہے جب تم ہمارے بیچ نہیں تھی۔ پھر ایک اور تصویر تھی جس میں وہ حنان کے چہرے پر جھکی تھی، اور یہ کچھ دن پہلے کی ہے جب حنان میرے گھر آیا تھا، مطلب ہم میں کچھ نہیں بدلا، حنان آج بھی میرا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چیٹ آف کر کے اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں سوئے ہوئے حنان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے عجیب ضرور لگا تھا تصویریں دیکھ کر، لیکن اسے حنان پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اپنا بھروسہ اور یقین ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پہلو میں ہی لیٹ گئی۔ وہ ابھی ابھی کچن کے لیے کچھ سامان لے کر مارکیٹ سے باہر نکلی تھی۔ ادھر ادھر ٹیکسی کے لیے نظریں دوڑاتے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی کمر پر ریوالور رکھا۔ وہ چونک کر مڑنے والی تھی جب اس کے پیچھے سے دھیمی لیکن بھاری آواز میں سرگوشی ہوئی، سامنے بلیک کار نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اس میں خاموشی سے جا کر بیٹھ جائیے۔ کون ہو تم؟ اس نے تیز آواز میں بنا مڑے پوچھا۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں ورنہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بھاری آواز دوبارہ ابھری۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کس کے آدمی ہے۔ تبھی ٹھنڈی سانس بھر کر وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی چلنے لگی۔ گاڑی میں 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا، دوسرا وہ جو اسے گاڑی تک لایا تھا، اور تیسرا اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ فجر باری باری تینوں کو دیکھنے لگی، شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب کیا پلان ہو سکتا ہے زرلش کا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی، تینوں آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ آئیے میم۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی نیچے اتری۔ یہ زرلش کا گھر تو نہیں تھا، کہاں لائے ہو مجھے؟ اس کے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا تھا سامنے والے نے۔ وہ آدمی اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو سامنے زرلش اس کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ سرپرائز مائی ڈیئر فجر۔ فجر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے۔ سو اٹ وازنٹ اے سرپرائز۔ اوہ، کافی انٹیلیجنٹ ہو تم تو بھائی۔ وہ مسکرائی۔ کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زرلش اس کے قریب آ کر اپنے بال جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ بیٹھو۔ زرلش اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے۔ زرلش نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ فجر کو کوفت ہونے لگی تھی۔ اوکے اوکے، میں جا رہی ہوں۔ رہو تم یہیں، رہو تم یہیں میرے ان آدمیوں کے ساتھ۔ زرلش کی بات پر فجر کا دل کانپا تھا، لیکن چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ بائے مائی ڈیئر، وہ اسے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فجر نے ادھر ادھر دیکھتے تھوک نکلا۔ وہی آدمی سر جھکائے مؤدب کھڑا تھا سامنے۔ اس نے نظریں پھیر کر دائیں طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی زرلش گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ چپ چاپ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ حنان نے کہا تھا کہ زرلش بہت خطرناک عورت ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرتے ہوئے وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اسے حنان اور انس کا خیال ستانے لگا۔ اب بوا کے ساتھ انس اٹیچ، لیکن زیادہ دیر اپنی ماں کو نہ دیکھ پائے تو رونے لگتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن وہ یہاں سے جا بھی تو نہیں سکتی تھی کہیں، وہ یہاں قید تھی اور نہ جانے کب تک قید رہے گی۔ تمہاری بیوی مل گئی یا ابھی بھی تم ڈھونڈ رہے ہو؟ کال پر زرلش کی آواز سن کر حنان کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ کیا بکواس ہے! لیکن دوسری طرف سے زرلش کی ہنسی گونجنے لگی۔ تمہاری بیوی میرے پاس ہے مائی ڈیئر حنان۔ اب کون سا نیا ڈرامہ رچا رہی ہو تم؟ اسے زرلش کی بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ واٹس ایپ کھول کر دیکھ سکتے ہو تم، اپنی بیوی کو میرے آدمیوں کے ساتھ۔ شٹ اپ!
उसने गुस्से से लाल होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन अब व्हाट्सएप पर फजर की तस्वीर देखकर वो दोबारा से जरलिश को कॉल करने लगा। जरलिश उसका नंबर देखकर मुस्कुरा दी और एक ही टच से उसका नंबर काट दिया। इट्स माई टर्न नाउ हन्नान। उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आई थी, जबकि हन्नान कॉल पर कॉल करके पागल हो रहा था। वो जल्दी से ऑफिस से निकलकर जरलिश के घर की तरफ रवाना हुआ। टिक टॉक, तुम आओगे हन्नान, तुम जरूर आओगे, वो मुस्कुराते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देखकर बोली थी। उसे मुकम्मल यकीन था कि हन्नान यहाँ उसके पास दोबारा आएगा। जो भी हो, उसे फजर से बेहद मोहब्बत थी और वो उसके लिए किसी भी हालत में कोई भी कदम उठा सकता था। फजर, फजर, हन्नान की आवाज़ उसके घर में गूंजी तो जरलिश मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में आई। कहा था ना कि तुम दोबारा आओगे यहाँ मेरे घर में। हन्नान मुड़कर उसके सरापे को देखने लगा। वो मुस्कुरा रही थी। हन्नान घुर्राता हुआ उसकी तरफ लपका। फजर कहाँ है? रिलैक्स डार्लिंग, जरलिश अपने बालों को झटकते हुए बोली। हन्नान ने गुस्से से उसका बाजू दबोच लिया। फजर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, यहाँ बस मैं और तुम है। वो उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। हन्नान शोला बार नजरों से उसे घूर रहा था। तुम जहर हो, जहर। जरलिश हंसने लगी, फिर उसकी आंखों में देखते बोली, इतना ज्यादा जानते हो मुझे? इतने करीब कब आए तुम मेरे हन्नान? वो लब भींचे जरलिश को देखता रहा। क्या चाहती हो? तुम जानते हो, वो मुस्कुराकर उसकी आंखों में बेबाकी से देखते बोली। फजर मेरी बीवी है, वो दांत पीस कर बोला। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे अपनी बीवी बना लो? बस कुछ लम्हे। वो उसके करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, एक अदा से। उसकी बेबाकी पर हन्नान ताज्जुब से उसे देख रहा था। शर्मो हया औरत का जेवर होती है जरलिश। मुझे अपने और तुम्हारे बीच सारे शर्मो हया के पर्दे गिराने हैं। हन्नान मुंह फेर गया। जरलिश ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मुझसे मुंह मत मोड़ो हन्नान, देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुकम्मल तुम्हारी। मैं मुकम्मल तौर पर खुद को तुम्हें सौंपने को भी तैयार हूँ। फजर कहाँ है जरलिश? वो अपनी बात पर जोर देते बोला। वो मेरे पास है, तुम्हारे पास आ जाएगी। बस आज की रात मेरे पास आ जाओ प्लीज हन्नान। तुम क्यों नहीं समझते? वो चीख पड़ी। हन्नान लब भींचे उसे देखने लगा। अगर फजर उसके पास ना होती तो वो कब का उसे धक्का देकर जा चुका होता। जरलिश बहकी नजरों के साथ उसे देखती रही। जरलिश, तुम मेरे अब सब्र का इम्तहान ले रही हो, वो चिल्लाया। और तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रहे हो हन्नान? वो उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाई थी। क्यों, क्यों भागते हो मुझसे? वो खामोशी से उसे देखता रहा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फजर कहाँ है? वो लब भींचे बोला था। वो चुप रही तो हन्नान गुस्से से आगे बढ़ा। उसकी आंखें खून छलका रही थी। जवाब दो। जरलिश हंसने लगी। हन्नान ने उसे धक्का देकर दूर किया और लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि जरलिश दीवार से टेक लगाए उसे जाता देखती रही। पागलों की तरह उसने हंसना शुरू कर दिया। तुम आओगे हन्नान, तुम फिर से आओगे मेरे पास। तुम खुद मेरे करीब आना चाहोगे और मैं वेट करूंगी उस दिन का। उसने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उसे फजर कहीं नहीं मिली। वो अपने दोस्त इंस्पेक्टर शाहवेज से भी बात कर चुका था। वो भी अपनी सी कोशिशें कर रहा था। यहाँ तक कि वो जरलिश के घर पर भी गया, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिल सका। वो वहाँ उसके घर पर नहीं है हन्नान। वो तो इस बात से भी इनकारी है कि फजर उसके पास है। शाहवेज हन्नान की गमजदा हालत देखते उसे बताने लगा। हन्नान सर झुकाए खामोशी से अपने हाथों की उंगलियों को देख रहा था। जरलिश ने भाभी को कहीं और ही रखा होगा, लेकिन वो इतनी शातिर औरत है कि उससे कोई सबूत तक नहीं मिल रहा, और बिना सबूत के हम एक्शन भी तो नहीं ले सकते ना यार। शाहवेज ने मजीद बताया, लेकिन हन्नान की हालत देखकर वो परेशान हुआ। हन्नान, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ, हन्नान ने धीमे लहजे में कहा। उसे उन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस फजर की फिक्र थी। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। वो लड़खड़ाते कदमों से वहां जाने के लिए उठा तो शाहवेज भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। हन्नान का हाथ थामने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन हन्नान ने उसे रोक दिया। मैं जा सकता हूँ, ये कहकर उसने आगे कदम बढ़ा दिए।
सुनसान सड़क पर चलते हुए वो बार बार खुद को मलामत कर रहा था। रात के अंधेरे में इक्का दुक्का गाड़ियां ही थीं जो वहां से गुजर रही थी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज बस चलता जा रहा था। उसे किसी भी तरह से फजर को उस शातिर औरत के चुंगल से आज़ाद कराना था, और उसे आज़ाद कराने का एक ही रास्ता था कि वो जरलिश की बात मान ले। उसे ये तक नहीं मालूम था कि फजर को उसने कहाँ रखा हुआ है, वो कहाँ ढूंढे उसे। उसे बस यही बात समझ आ रही थी कि वो फिर से जरलिश के दर पर जाए और उसकी बात मान ले। और वो अभी जरलिश के ही दरवाजे पर खड़ा था। उसने बेल बजाई, दोबारा बेल बजाई, फिर तीसरी बार बेल बजाई तो दरवाज़ा खुल गया। सामने ही जरलिश की नौकरानी खड़ी थी। हन्नान को देखकर उसने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आप बैठिए, मैं जरलिश मैम को बुलाती हूँ। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। नौकरानी उसे देखती आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद दोबारा आई। मैम ने आपको अपने रूम में बुलाया है। हन्नान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई तो उसने दोबारा से आवाज़ दी, हन्नान सर। हन्नान चौंक कर उसे देखने लगा। आपको मैम ने अपने रूम में बुलाया है। उसने दोबारा से अपनी बात दोहराई तो हन्नान सर इस बात में हिलाता जरलिश के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही बेड पर जरलिश ब्लैक नाइटी में मलबूस उसे मुस्कुराता देख रही थी। हन्नान ने दरवाज़ा अपनी पुश्त पर बंद किया और थके कदमों के साथ उसके करीब आया। जरलिश की मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर थी। हन्नान वहीं नीचे गिर सा गया और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। मैं हार गया, मैं हार गया। जरलिश के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो भी उसके पास आकर बैठ गई। ऐसे मत बोलो, तुम नहीं हारे हन्नान, तुम हार ही नहीं सकते। ये तो हमारे मिलन की रात है, मेरे और तुम्हारे बीच की दूरियां खत्म करने की रात। आओ, मेरे पास आकर बैठो। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठा था और जरलिश उसे लिए बेड तक आई। वो बस खींचता जा रहा था उसके साथ। उसकी जैसे रूह तक साकित हो चुकी थी। वो फजर के साथ बेवफाई का मुर्तकिब होने जा रहा था। वो फजर जिससे वो मोहब्बत करता है, जो उसकी बीवी है, वो उसके साथ बेवफाई का मुर्तकिब हो रहा था। जब अचानक हन्नान के मोबाइल पर कॉल आई। हन्नान ने देखने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन जरलिश ने हाथ बढ़ाकर उसका मोबाइल उससे छीनना चाहा। हन्नान शाहवेज का नंबर देखकर कान से लगा चुका था फोन। दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर सुनकर वो एकदम से उठ बैठा था। जरलिश को धक्का देकर उसने एक तरफ किया। मैं आ रहा हूँ। मोबाइल बंद करके उसने जरलिश पर बिना नजर डाले बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जरलिश वहशत ज़दा सी उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है जरलिश। तुम एक सेल्फिश, शातिर और बेहया औरत हो जो हमेशा बिकने को तैयार रहती है। न जाने कितनी दफ़ा बिक चुकी हो तुम। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम जैसी बाजारी औरतें ही होती हैं जो लोगों के हंसते बसते घरों को बर्बाद कर देती हैं। तुम काबिले रहम हो, काबिले नफरत औरत हो तुम। ये कहकर उसने जरलिश को धक्का देकर साइड पर किया और खुद बाहर निकल गया। उसे अब जरलिश के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे उस बंगले का एड्रेस मिल चुका था जहाँ पर फजर कैद थी। शाहवेज यही बताने के लिए उसे कॉल कर रहा था, और अब वो शाहवेज के बताए हुए एड्रेस पर जा रहा था। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि वो आज फजर से बेवफाई का मुर्तकिब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया था। फजर के लिए उसकी मोहब्बत और उसके एहसासात पाकीज़ा थे, तभी अल्लाह ने उसे गंदगी से बचा लिया। हन्नान, वेट करो मेरा, अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारा वहाँ। शाहवेज जो ट्रैफिक जैम में फंसा था, कॉल पर हन्नान को वहाँ अकेले जाने से रोक रहा था। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जल्द से जल्द फजर के पास पहुँचना है। हन्नान गाड़ी चलाते बेचैनी से बोला। आई नो हन्नान कि तुम परेशान हो भाभी के लिए, लेकिन वहाँ जरलिश के आदमी हैं हर तरफ, कुछ भी हो सकता है। शावेज परेशानी से बोला। मैं बस पहुँच रहा हूँ। ये कहकर हन्नान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और गाड़ी एक बंगले के सामने रोक कर वो बाहर निकला। गेट पर गार्ड उसे देखकर पहचान गया। हन्नान सर, आप यहाँ? वो हैरानी का इजहार करते बोला। फजर कहाँ है? वो उसे तंबीही नज़रों से देखता फजर का पूछने लगा। फजर मैम तो यहाँ नहीं है, वो नज़रें चुराते बोला। हन्नान उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। गार्ड भी पेशानी मलता उसके पीछे आया। हन्नान अंदर जा चुका था, जहाँ जरलिश के दो आदमी थे। दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हन्नान सर, परेशानी उनके चेहरे से आया थी। फजर कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगा।
यहाँ कोई नहीं है हमारे सिवा। उनमें से एक बोला तो हन्नान के सख्त नज़रों से देखने पर वो गड़बड़ाकर सर झुका गया। फजर, फजर, वो ऊंची आवाज़ में फजर को बुलाने लगा। जब वो दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे कि अब जरलिश को क्या बताएंगे। फजर जो सोफे पर लेटी हुई थी, हन्नान की आवाज़ पर अचानक ही अपनी जगह से उठी और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। नीचे उसे हन्नान खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत के तासुरात उभरे थे। हन्नान, वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतरती उसके गले से आकर लगी थी। हन्नान, फजर रोने लगी, जबकि हन्नान उसके बालों पर हाथ फेरता उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? फजर रोते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। वेल डन, वेल डन। आवाज़ पर अचानक दोनों ने मुड़कर देखा। जरलिश रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ी थी। हन्नान ने फजर को अपने पीछे कर लिया, जबकि जरलिश की जहरखंद हंसी गूंजी। नहीं बचा पाओगे अब तुम इस औरत को हन्नान, और ना ही खुद तुम बच पाओगे। हन्नान लब भींचे उसी को देख रहा था। वो उनके सामने आकर कुछ फासले पर खड़ी हो गई। कितनी दफा, आखिर कितनी दफा ये औरत छीनेगी तुम्हें मुझसे? कब तक सब करना होगा मुझे? वो चिल्लाई थी। मरती क्यों नहीं है ये? वो खूनखार नजरों से फजर को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए तड़पती रहती हूँ मैं। तुम्हें नजर नहीं आता ये सब? बस यही नजर आती है। अय्याशी का अड्डा बन गई है, पहले ताबिश के लिए और अब तुम्हारे लिए ये। शट अप। हन्नान घुर्राया था। जरलिश अपनी वहशत ज़दा आंखों से उसे देखती हंस पड़ी। उसकी आंखों से गम और गुस्सा झलक रहा था। मोहब्बत करते हो फजर से? करते थे पहले भी। मुझे, फिर मुझे अपना के भी तुम इससे, इस औरत को, इसे चाहते रहे। तुम्हारे करीब आई तो तुम दूर हो जाते। क्यों हन्नान, क्यों? मैं भी तो मोहब्बत करती हूँ ना तुमसे। फिर क्यों? बोलो क्यों? आखिर में वो चिल्लाई थी। फजर ने हन्नान का कंधा थाम लिया। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बन सके तुम मेरे। तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है, मुझसे नहीं, वरना चंद लम्हे ही दे देते मुझे तुम। मुझ में, मेरे वजूद में तुम्हें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है? रुक कर वो अपने आंसू साफ करने लगी। पहले कौन मरना पसंद करेगा तुम दोनों में से? ड्रामा बंद करो अपना तुम। हन्नान उसे सख्त नजरों से देखता गुर्राया। ड्रामा? वो फिर हंसने लगी। मैं अजियत में हूँ, मैं बहुत अजियत में हूँ हन्नान। मरना चाहती हूँ मैं। आज हम तीनों मरेंगे, यहीं, इसी जगह। मुझे माफ़ कर देना। अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घूंटना, अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर देना बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही गोली चलने की आवाज़ आई। लेकिन इससे पहले कि गोली हन्नान को लगती, फजर उसके सामने आ चुकी थी और दो गोलियां आगे पीछे उसके पेट में जा लगी थी। हन्नान पथराई आंखों से फजर के खून आलूद वजूद को देखता अपनी बाहों में भर चुका था। फजर मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। फजर, फजर, कांपती आवाज में उसे वो पुकारने लगा। उसका चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन फजर की आंखें बंद हो रही थी। आंखें खोलो प्लीज फजर, आंखें खोलो। वो रोने लगा था। जरलिश उन दोनों को देख रही थी। हन्नान की बेचैनी फजर के लिए वो देख रही थी। वो मंजर देखकर उसका जिस्म, ज़हन, रूह सब कुछ जैसे झुलस रहा था। उसने तीसरी गोली चलाई जो हन्नान की पुश्त पर लगी थी। साकित आंखों से वो हन्नान को फजर के पहलू में गिरते देख रही थी। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट थी। आंखें बंद करके उसने रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर रखी और गोली चला दी। शाहवेज भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचने में उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। यादें हमारी जिंदगी का कीमती सरमाया होती हैं, और जिन लोगों से हमारी यादें वाबस्ता होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। मोहब्बत हमें कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो सकती है, लेकिन पता है क्या, हम मोहब्बत तो कर लेते हैं। उन लम्हों का हसीन एहसास हमारे लिए बहुत अनोखा होता है जब हमें किसी से मोहब्बत हो रही होती है। लेकिन मोहब्बत का अंजाम क्या होता है, इससे हम ही अनजान होते हैं। कौन जीतता है, कौन मरता है, कौन छोड़ जाता है, कौन साथ रहता है, ये सब हमें मालूम नहीं होता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत मान होती है, मोहब्बत अम्र होती है। फिर चाहे वो बिछड़ जाए, यादें तो साथ होती ही है ना।
حسین لمحوں کی حسین یادیں۔ وہ دیر تک بیٹھا اس قبر کو دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر پاس بیٹھے 5 سالہ انس کو دیکھا جو اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ حنان کی طرف دیکھنے لگا۔ حنان کے لبوں پر دھیمی مسکان تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو انس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے ننھے ہاتھ حنان کے ہاتھ میں دے کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زندگی کا سفر بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ ساری زندگی اپنوں کے ساتھ کی چاہ رہتی ہے، لیکن جب ایک بار وہ منہ موڑ لیں، زندگی آپ سے، سانسوں کا ساتھ چھوڑ جائے، روح جسم سے آزاد ہو جائے، پھر کون سی چاہ اور کیسی چاہ۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، فجر کڑے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ کہا بھی تھا نا کہ جلدی آنا گھر۔ ہم بڑے پاپا کے پاس گئے تھے، انس کہتا اپنی 1 سال کی بہن انشا کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ فجر نے حنان کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ حنان جیسا اچھا، نیک دل انسان، محبتیں نچھاور کرنے والا انسان۔ اسے حنان سے محبت نہیں، عشق ہو گیا تھا۔ وہ عبادت کی طرح اسے عشق کرتی تھی۔ ہوتا ہے نا کوئی بہت اچھا، بہت پیار کرنے والا انسان، ہمیں اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل اس کی عبادت کرنے کو چاہتا ہے۔ انس اور انشا کو سلا کر وہ اب حنان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی اور محبت پاش نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ حنان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ تم اتنے اچھے، اتنے محبت کرنے والے کیوں ہو حنان؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قرضدار ہوتی جا رہی ہوں تمہاری۔ تم تینوں میرے ہو فجر، میرا وجود ہو تم تینوں، میری ذات کی تکمیل ہو تم تینوں۔ جیت تو محبت کی ہی ہوتی ہے نا۔ حسد اور جلن کی آگ میں اکثر انسان خود ہی جھلس جاتے ہیں۔ زرلش نے حسد میں مبتلا ہو کر حنان اور فجر کو الگ کرنے کی سر توڑ کوششیں کی، فجر کو مارنے کی کوششیں کی، حنان کو اپنے قریب لانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن پھر بھی وہ ہار گئی اور اسی حسد کے ساتھ وہ موت کے دامن میں جا سوئی، جبکہ حنان اور فجر اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں اور تابش۔ فجر دھیرے سے مسکرا دی، اس کی روح پرسکون ہے، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا کہ فجر ہمیشہ خوش رہے، محبتوں کے حصار میں رہے، ایک اچھے انسان کے ساتھ رہے، اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی فجر حنان کے ساتھ خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ دل کے کسی کونے میں تابش آج بھی زندہ ہے، اس کی محبت آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے حنان، انس، انشا اس کی کل کائنات ہے۔